you please stick to the subject and आज भी दलितों को that is not correct. That is not correct. That is not correct. Nothing will go on record unless the house comes in an order. Nothing will go on record unless the house comes to an order. Nothing will go on record, Gargaji. Nothing will go on record unless the house comes in order. Please, you bite here. You please bite here. I will request him not to deviate from the subject. You please bite here. I am requesting him not to deviate from the subject. You all please bite here. Gargaji, you are a very senior person. You should be an exemplary to all the younger member of parliament. I am requesting you not to deviate. The government is already given their consent. They want to discuss separately the economics, security separately. You come back to the Vande Mataram and you speak, please. Others all fight here. Others all fight here. Sir, आज भी Honorable leader of the house want to say something. You hear it? No. Let him say. मैं खड़गे जी से विनम्र भाव से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, बहुत हाई क्वालिटी की डिबेट चल रही थी। मैं चाहता हूं कि इसकी क्वालिटी इसी प्रकार से रहे। मैं दोबारा निवेदन उनसे करना चाहता हूं, आपने भारत की इकोनॉमी पर चर्चा चाहिए है, हम करने के लिए तैयार हैं। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पर चर्चा मांगी हो, हम करने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी कहा ऑपरेशन सिंदूर और उसके इंपैक्ट के बारे में आपने चर्चा मांगी थी, हम यहाँ चर्चा हुई और ये अलग बात है कि आपको मुंह की खानी पड़ी उस पर। yes. फिर आपने और भी चर्चा मांगी थी वक्फ बोर्ड पर, वो भी चर्चा इस हाउस में हुई है, उसमें भी आपको मुंह की खानी पड़ी है। आपने अन्य विषयों पर भी चर्चा मांगी, आपको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आज वंदे मातरम का डिस्कशन चल रहा है, कृपया करके ये रिटन टेक्स्ट मत पढ़िए, ये रिटन टेक्स्ट मत पढ़िए। आप वंदे मातरम पर चर्चा कीजिए, इस तरीके से आप एजुकेशन पर चर्चा करेंगे, आप इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे, आप इंटरनेशनल। ये डिबेट का तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। डिबेट का तरीका है सब्जेक्ट तय होता है, यू स्पीक। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, एंड आई नीड योर प्रोटेक्शन टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द डिबेट। Anything irrelevant to the subject should be expunged from the proceedings. Anything unparliamentary will not go on record. No. I am not saying any unparliamentary will not go on record. What is your problem? Any unparliamentary. No. What is your problem? If anything unparliamentary, my problem is that दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। प्रॉब्लम इज शादी में घोड़े पर बैठना चल नहीं देते। माई प्रॉब्लम इज गाँव के कुएं से Karge ji, when you are talking about Vande Mataram, there is no problem in the house. When you are going out of the subject, all the problems are started. पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। No. Sir, nothing will go on record. Nothing will go on record till the house comes to an order. Nothing will not go on record. Nothing will not go on record unless the house comes to an order. You please all wait here. All others wait here. Karge ji, you have to stick to the subject, please. Unnecessarily, it is creating pandemonium in the house. सर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने जैसी घटना बढ़ती सामाजिक कटुता है और This will not go on record. This will not go on record. That has nothing to do with Vande Mataram. This will not go on record. दलितों के न्यायाधीशों के ऊपर, ऑफिसरों के ऊपर हो This will not go on. हम सब वंदे मातरम कहते हैं और इस मातृभूमि को नमन करते हैं, लेकिन इसी मातृभूमि में कमजोर दलितों, असहायक लोगों को हर Nothing will go on record. Nothing will go on record till the house comes to an order. किया जाता है। सरकार की कुछ पसंदीदा पूंजीपति। Nothing will go on record till the house comes to an order.
बैठिए, all बैठिए, all बैठिए, please. All बैठिए, please. All बैठिए, please. No. संजय सेठ जी, please बैठिए. Please बैठिए, please बैठिए. Please बैठिए, everyone, please take your seat. Everyone, please take your seat. Now, 1 minute, Karge ji, 1 minute. When we are discussing about a subject, my humble request to all the members, please stick to the subject. If you want to discuss anything extra, the government is ready. We can plan it in the future. We can have it, and we can have a fruitful discussion on that subject. Why, Karge ji, when you are talking about Vande Mataram, it was all right. When you are deviating, unnecessarily a pandemonium is getting created. We want a fruitful discussion. That is our aim, and I hope you can understand that. Kindly stick to the subject, please. सर, आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार इस गफलत में न रहे कि सामने मौजूदा महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे थे, लेकिन हमको ध्यान भटकाने का नहीं है। हमको ये आपके सामने इसलिए रख रहे हैं जो हालांकि देश में जो स्थिति दलितों की है, बच्चों की है। No. Government has already agreed. Government has already agreed for a debate and discussion on economics, on security, everything. Then what is your problem? Whatever you want to say, yes. You please बैठिए. Please बैठिए. Tiwari ji, you please बैठिए. No, your leader is capable of handling it. You please बैठिए. भारत माता के पुत्र है साहब. उनकी तकलीफ में बात कर रहा हूँ. when you are विपक्ष के तौर पर हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और सरकार के सवाल पूछते रहेंगे. यही सवाल है उनसे सरकार. Please, honorable leader of the house will speak. All others please बैठिए. Honorable leader of the house will speak. And now I requested honorable leader of the house to speak. Sir, I would request you. Only 1 minute. Sir, I would request you that anything other than the subject is spoken by the leader of the opposition, that should be expunged and that should not come on record. I have already said the high deviation from the subject will not be recorded and it will be expunged. I have already said, and you don't disturb the house, please. Garge ji, you please continue your debate. सर, क्यों दलितों से नफरत है मेरे समझ में नहीं आ रहा. क्या वह भारत माता के पुत्र नहीं है? भारत माता के और उनके who said? All these are our brothers and sisters. Nobody has said that they are. उनकी समस्या यहाँ रखना गलत है. They are different from ours. Nobody has said that. Why you are taking it? सभापति जी, देश जानता है वो भारत माता के पुत्र है और भारत माता के सुपुत्रों के बारे में हम बात करना. Yes, now again, honorable leader of the house, you are, Garge ji, whenever you are deviating from the subject, the house will get disturbed. That you have to understand it. Now, sir, honorable leader of the house. Again, I would like to make it very clear कि हमारी सरकार दलितों का बहुत प्रमुख स्थान मोदी में है. दलितों को don't stand anywhere. भाइयों को हम please don't stand anywhere. कहीं ये संदेश नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट से अलग होकर के बात कर रहे हैं. इस बात का विरोध है. दलित हमारे बहुत आदरणीय है, सबको हम ध्यान में रखते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में दलितों का जितना भला हुआ है वो कभी नहीं हुआ है. इस बात को भी हमको ध्यान में रहना चाहिए. लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं, प्लीज खड़गे जी, अगर आपकी स्पीच का कोई पेपर बदल गया है तो 2 मिनट रुक जाइए, सही पेपर लेकर के डिस्कशन कीजिए.
का पेपर ले आए आप, उसको मत रखें। Now, Kharge ji, all others, please be seated. Please be seated. Please be seated. Kharge ji, don't deviate from subject. If you deviate from subject, that will not go on record. Please don't deviate. ना कि वंदे मातरम का सच्चा सम्मान You please beg it. बीजेपी Please beg ने it. कभी Please किया beg it. नहीं। इन्होंने 50 साल तक तिरंगे को ठुकराया, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, और इन्हें ही सरदार पटेल ने नफरत और हिंसा फैलाने के लिए बैन कर दिया था। आज वही हमें यहाँ इस राष्ट्रभक्ति का गीत और भाषण दे रहे हैं। देखिए कैसी विडंबना है, देखिए कैसी विडंबना है। जो लोग कुछ नहीं कर पाए वही हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके विपरीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस ने गाया। आजादी के हर चरण में इसे ध्वजवाक बनाकर आगे बढ़ाया और इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का भी दर्जा दिया। सर, आज भी हम कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस का गीत अलग है, क्योंकि इनका गीत अलग ही है। ये वंदे मातरम नहीं है। हमारा गीत वंदे मातरम है और आरएसएस का झंडा अलग है और तिरंगा हमारा है। आरएसएस की किताब मनुस्मृति है, हमारा संविधान है। ये साफ है कि आरएसएस और बीजेपी की भले ही आज नींद से जागी है, इसीलिए बहस कर रही है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का नारा बनाया और आजादी के बाद राष्ट्रगीत का दर्जा कांग्रेस ने दिया। सभापति जी, आखिर में मैं सरकार में बैठे लोगों से ये कहना चाहूंगा, या आखिर में कहना चाहूंगा, कम से कम ये तो सुने। आखिर में मैं सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहूंगा कि असत्य फैलाकर राष्ट्रीय नायकों पर कीचड़ उछालकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का काम बंद कीजिए। संविधान को बनाने वाले नायकों और देश की आजादी में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले नेताओं का सम्मान करना सीखिए। आप जब भी इनको अपमानित करेंगे तो ये बात भी खुलकर सामने आएगी कि देश की आजादी में आपके पूरकों का कोई भूमिका नहीं है। गांधी जी, नेहरू जी और स्वाधीनता आंदोलन के सभी नायकों की सोच से देश को आजादी मिली, दुनिया में प्रतिष्ठा मिली। इनके विवेक पर सवाल खड़ा करके आप देश दुनिया में अपनी हंसी मजाक न उड़ालें। वंदे मातरम का सम्मान करना सीखिए। विधानसभा के चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन वंदे मातरम का सम्मान करना, उसका समान दृष्टि से लोगों को देखना, ये काम आप सीखेंगे। ये मैं नहीं बैठो भाई, तो ये मैं उनसे विनती करना चाहता हूं। और आखिर में एक बात बोलता हूं और बोल के मेरे शब्द को खत्म करता हूं। विराम बोलो, खत्म, समाप्त करता हूं। तो मेरी हिंदी है ना कि नहीं? सर, वो गीत जिसने सिर्फ लोगों को नहीं दिलों को जोड़ा था, वंदे मातरम गीत जिसने सिर्फ लोगों को नहीं दिलों को जोड़ा था, आज उसी गीत पर झंडे गाड़ने का दुस्साहस आप लोग कर रहे हैं। जिनका उस जोड़ी गई धड़कन में कोई हिस्सा न था, तो ये इनका करतूत है। ये कभी लड़े नहीं, कभी देश के लिए अपना कुर्बानी नहीं दिए, सिर्फ इसमें कैसा अधिकार में कैसा रहना, यही सिर्फ ये करते हैं। इसीलिए मैं अपने बात को विराम देते हुए, और एक बात उन्होंने उठाई थी कि ये 1994 में
यहाँ पर जो नेशनल एंथम और वंदे मातरम का जो हुआ था, तो यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट में ये हुआ था, और वो भी हमें हमारे नरसिंह राव जी जब थे या कांग्रेस पार्टी के थे उस वक्त ये गीत दोनों आए, और इसी से हम स्टार्ट। तो इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ और आप इतना समय दिए। लेकिन आखिरी में इतना करता हूँ, देश को मजबूत रखना है, देश एक रखना है, इसीलिए वंदे मातरम हम सबका मंत्र होना चाहिए। यही कह के मैं अपने सब शब्दों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।